بریلی والوں کی فتاوی رضویہ ایک کتاب ہے، ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب رکھی گئی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے جو بھی ایشو ہیں اسی کتاب کی روشنی میں حل ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی بھارت ورش کے ایک زبردست جلیل القدر عالم نے پوری دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بریلی والے اعلیٰ، تو یہ جتنے بھی بریلی کے ماننے والے فالوورز ہیں مولوی لوگ، اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بآواز بلند علی رؤوس الاشہاد مجمع عامی میں یہ بات کہتے ہیں کہ حج تو مکے میں ہوتا ہے، بے شک، حج تو منہ میں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا، عرفہ میں ہوتا، حج جناب مکے کی وادیوں میں ہوتا، کعبے کا طواف ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے، عرفے کا قیام ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے تو حج ہوتا ہے۔ یہ حج کے مناسک ہیں۔ حج جگہ سے کعبے کی وادیوں میں ہوتا ہے، جزاک اللہ، مگر حج قبول ہوا یا نہیں ہوا بے شک، سبحان اللہ، یہ فیصلہ مکے میں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ مکے میں نہیں ہوتا ہے۔ حج تو کعبے میں ہوتا، حج کعبہ مکے کی وادیوں میں ہوتا جناب، اور حج عرفہ میں ہوتا۔ خدا کی قسم مگر حج کے قبولیت پر، حج کے ایکسپٹنس پر آخری فیصلہ مدینے والے مصطفیٰ کرتے ہیں، یعنی آخری دھپا مدینے میں لگایا جاتا ہے۔ حج تو مکے میں کرتے ہو، ویریفیکیشن آمینہ کے سبحان اللہ۔ خدا کا یہی ہے در، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ایک بات یہ سمجھ گئے آپ؟ تو سارے نبیوں کے بعد جی، نور کی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے بشر کی دنیا میں 1500 سال پہلے بھیجا، 1499 سال پہلے۔ بے شک، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیدا ہو، پیدائش تو آپ کی تب ہو گئی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا۔ جی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو دنیا کی ہر چیز سے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ جہان نہ نظام، کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ اور ایک اللہ کے محبوب کا نور۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بے خاتمہ نبی اربوں سال خربوں سال تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتا رہے۔ ایک طرف عاشق ہے، ایک طرف معشوق ہے، ایک طرف محبوب ہے، ایک طرف محب ہے۔ خدا کی قسم یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ ہمارے نبی جن کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں پڑا، کیا اہمیت اور کیا امپورٹنس کے حامل ہے، کیسا اہم مصطفیٰ ہے، اور کیا اللہ کا چہیتا محبوب ہے، اور کیا خدا کی قسم مشیت کا اکیلا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ 1499 سال پہلے دھرتی پہ آئے، تو انہیں سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علم والے کوشش کرتے رہے کہ یہ ہیں کیا، مگر وہ علم والوں کی بھی سمجھ میں نہیں، علم والوں کی بھی سمجھ میں، اب جب علم والوں ہی کی سمجھ میں نہیں آئے ہو تو جاہل کیا سمجھیں گے؟ ارے جنہیں ابھی بیٹے یاد نہ ہو، جنہیں پاپا گا یاد نہ ہو، جنہیں جناب والا ABCD یاد نہ ہو، وہ اتنی بڑی ہستی کو پہچان لے گا؟ اسی لیے آج جتنے یہ بدتمیز حضور کی شان میں درندگی کر رہے ہیں، نا کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، جینا نہیں آتا، جہالتوں کے پلندے سروں پہ رکھے ہوئے، بس جسے دیکھو حضور کی شان میں گستاخی کر دیتا، حضور کی شان میں گستاخی کر دیتا، نہ دیکھنے کا، نہ بھالنے کا، نہ پڑھا لکھا، جاہل، جاہلوں کا لیڈر کو بلکہ جناب والا وہ حضور کی شان۔ ابے تم جسے علم والے نہ سمجھ سکے، جی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم والے شیخ سعدی علم والا ہے، یہ کہہ کے رخصت ہو گیا۔ شیخ سعدی جیسے زبردست عالم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے بہت سروے کیا، بڑا جائزہ لیا حضور کی زندگی کا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا سمجھ میں آیا کہ بعد از خدا
बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर कि खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग वाला है तो बस तू है, यही किस्सा शॉर्ट है। बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाह अकबर नारे रिसालत। अल्लाह जज़ाए खैर दिया। नारे भी थोड़ा कम लगाओ। और नारा तुम्हें लगाना चाहिए, स्टेज से कोई जरूरी नहीं है कि स्टेज से नारा लगे। कभी कभी नारा तुम भी लगा दिएगा, उनका कोई ठेका थोड़ी है। मुझे स्टेज का नारा तो बिल्कुल इस दौर में तो नहीं पसंद आ रहा है। पब्लिक में से अगर किसी को कोई बात समझ में आ जाए और वो नारा लगा दे तो वो मुझे अच्छा लगता है, और उससे ये एहसास होता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है। तो शेख सादी जैसा शख्स ये कह गया, बादल खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। डॉक्टर माइकल हार्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे थिंकर हैं डॉक्टर माइकल हार्ट, बहुत पढ़े लिखे जो कल्चर्ड थिंकर हैं वो, मानवता में, मानव दुनिया में, इंसानी दुनिया में, ह्यूमन सोसाइटी में बहुत बड़े थिंकर का नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उन्होंने एक किताब लिखी थी दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया के 100 बड़े लोग। तो उन 100 बड़े लोगों में उन्होंने पहले नंबर पे हमारे नबी का नाम लिखा। बेशक सुभान अल्लाह। किसका नाम? He was asked, उनसे पूछा गया कि क्रिश्चियन, आप ईसाई हो, और ईसाई हो तो पहले नंबर पे ईसा का लिखना चाहिए, और पहले नंबर पे आपने लिख दिया प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का, हुजूर का। तो उन्होंने जवाब दिया, दरअसल मैंने बहुत दिनों पढ़ा। मैंने हजरत ईसा की पूरी जिंदगी पढ़ी, फिर मैंने मोहम्मद मुस्तफा की पूरी जिंदगी पढ़ी, फिर मैंने और नबियों की भी पढ़ी, मगर किसी नबी में वो गुण नहीं मिले जो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रात में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़े लिखे आदमी की बोली है। और ये हुजूर के बारे में जो गुस्ताखी कर रहे हैं ये जाहिल। अब मुझे ये तो बताओ कि इनकी माने या इनकी माने। ये कहता जो गुण मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिले, कहता मुझे ये गुण किसी नबी और किसी रसूल के अंदर नहीं मिले। हजरत ईसा के बारे में मैंने ये पढ़ा कि वो मजहबी एतबार से दुनिया से बेजार थे, तारीख दुनिया थे, वो जाहिद थे, मजहबी एतबार से बहुत एक्सपर्ट थे, मगर जब मैंने हजरत अब्दुल्ला के बेटे के बारे में पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, उनके अल्फाज में कहते हैं he was supremely successful on both levels। कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा यानी हजरत अब्दुल्ला के शहजादे दोनों लेवलों पे, यानी मजहब के लेवल पे भी और राजनीति के लेवल पर भी बेशक जोर से इंतहाई हद तक कामयाब थे। उनसे ज्यादा कामयाब आदमी मैंने आदमी की दुनिया में आज तक नहीं देखा कि जिसने सिर्फ 23 साल तक मानव जाति का झंडा उठाया और सारी दुनिया के शहंशाह और बादशाहों के कदमों पे बिछने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे हो, ऐसे खामोशी से बैठे हो, तुम्हारी माँ का नाम खराब होता है इन चीजों से। जब बातें करते हो तो आदमी समझता है कि इनकी माओ ने कुछ सिखाया नहीं। अगर अपनी माओ का नाम रोशन करना चाहो तो ऐसे ही खामोश बैठे रहो। तवज्जो है यार? अलग में कुछ रखे, ये बात समझ में आ गई। मगर फिर भी आज जाहिलों की दुनिया में हमारे नबी का चर्चा होता है, इस्लाम का चर्चा होता है, कुरान का चर्चा होता है। कुरान ऐसा, इस्लाम ऐसा, जनाब वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे। हालांकि जनाबे वाला देखो दुनिया में इंसान बहुत आए, हजरत ईसा भी आए, हजरत मूसा भी आए, लेकिन चर्चा जनाबे वाला टीवी के पर्दे पे किसी का नहीं होता, क्रिटिसाइज किसी को नहीं करते, तनकीद किसी पे नहीं करते। हर वक्त डिबेट देखो तो तुम्हारे नबी के बारे में हो रही, नबी ने ऐसा कर दिया, नबी ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, और जनाब वाला कुरान ने ऐसा कह दिया। डिबेटों पे देख लो, हर जगह यही चर्चा होती है, हर जगह यही चर्चा होती है। मुझे पहले बड़ा दुख रहता था यार, क्या हो गया हर वक्त इस्लाम और मुस्तफा के खिलाफ ही लोग
बकवास करने लगे, हो क्या गया। मगर फिर मुझे एहसास हुआ अब मुझे कोई हैरत नहीं होती। दर्द तो होता है, अगर कोई जाहिल हुजूर की शान में दरिंदगी करता है, दर्द तो होता है, मगर हैरत नहीं होती। और हैरत इसलिए नहीं होती, इसलिए नहीं होती है, हैरत इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे। बेशक सुभान जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर भी ज्यादा। आज तक मैंने किसी पागल को भी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। बिलखन और पाखर के पेड़ पे कोई जाहिल और कोई पागल भी पत्थर नहीं मारता। जब भी पत्थर लगते हैं तो आम के पेड़ को लगते हैं, जब भी पत्थर लगते हैं फल वाले पेड़ को लगते हैं। इसका मतलब अगर चर्चा में है मेरा नबी, बेशक सुभान अल्लाह। अगर पूरी दुनिया के पर्दे पर क्रिटिसाइज का महवर उम्मत का जो सेंटर ऑफ क्रिटिसाइज बना हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस बात खुश हो जाओ कि सारी दुनिया में अगर चर्चा का कोई विषय है तो मेरा नबी इसलिए विषय बना हुआ है चर्चा का, इसलिए चर्चित है कि अगर कोई फरमाना रसूल है पूरी दुनिया में तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा शरफ वाला है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है और सबसे ज्यादा अल्लाह की कसम पूरी दुनिया का सुपरियर और सारी दुनिया का सुप्रीमो है। बेशक सुभान अल्लाह। नारों की जरूरत नहीं, ऐसे ही बैठे रहो और सुनते रहो बात को, गौर से सुभान अल्लाह कहते रहो। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ में आई जी। अब सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1499 साल पहले आया तो वो गुरु क्या है सरकार है। बेशक। नंबर 1 सुनो, अगर तुमसे कोई ईसाई पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया के लिए तुम्हारे नबी का क्या फायदा है, या कोई यहूदी पूछे तुमसे व्हाट द बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस यूनिवर्स, इस दुनिया के लिए तुम्हारे हुजूर का क्या फायदा है, तो एक फायदा बता सकते हैं आप लोग? आप ये बताओगे कि हमारे नबी ने कुरान दिया, वो कहेंगे हम नहीं मानते। खामोशी सब समझ है आपके? जी। वो क्या मैं नहीं मानता इस बात को, भाई कुरान से मुझे क्या लेना देना, क्या ईमान दिया, क्या मैं नहीं मानता इस बात को। एक यहूदी ईसाई ना तुम्हारे नबी के बारे में ये पूछे क्या फायदा तुम्हारे नबी का, तो क्या कहोगे? मेरी तरफ से ही कहना फायदे तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ हमारे नबी के आने के बाद कि जब नबी आए हैं 1499 साल पहले, 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह ने फरमाया, सुन रहे हो जी, सब बहुत बड़ा फायदा पूरी दुनिया के लिए। शिक्षा 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 चिल्लाती है दुनिया। आज मुझसे पूछो शिक्षा की बुनियाद क्या है? ये सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें फाउंडेशन बताना चाहता हूँ। जब 40 वर्ष के हो गए मेरे पैगंबर तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूंगी, मेरा बयान ले जा। तो जनाब वाला मेरे नबी गारे हीरा में तशरीफ लाए, गारे हीरा एक गार है जनाब, गारे हीरा में तशरीफ लाए और जैसे ही मेरे नबी गारे हीरा में अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू किया और नबी के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मुस्तफा के मान सम्मान में मेरे अल्लाह ने कुरान के पहले ही दिन जिस दिन कुरान उतरा उसी दिन मेरे अल्लाह ने शाही घोषणा कर दी, सरकारी फरमान अल्लाह की तरफ से जारी हो गया और खुदा की कसम डिवाइन स्टेटमेंट आ गया अल्लाह की तरफ से। क्या जो सबसे बड़ा फायदा था पूरी दुनिया का, क्या आ गया? इससे पहले ही काम कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। अल्लाह ने पहले दिन फरमा दिया, क्या फरमाया? इरशाद फरमाता मेरा मौला कुरान शरीफ में कुरान शरीफ में पहली सूरत उतरी है, कुरान शरीफ के 30वें पारे में मौजूद है सूरह इक़रा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसमें शाही ऐलान फरमा दिया, शहंशाह का ऐलान, अहकमुल हाकिमीन का ऐलान। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब अल्लमल इंसान मा लम यअलम, मेरा अल्लाह फरमा आज पहले दिन सबसे बड़ा फायदा ये
इंसान मालम यालम, ए मेरे महबूब आज से हमने पूरे मानव समाज में, इंसानों की दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। आज से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, मगर तुम हमारे खिलाने आ गए हो, मैं कुरान दे रहा हूँ, इल्म का उजाला तुम्हारी वजह से जमाने में फैला रहा हूँ। खुदा की कसम वो उजाला फैल रहा था कि दुनिया ने जलाल चीजें बनानी शुरू कर दी। देखो बिजली आज बनी, पहले नहीं बनी, माइक आज बना, पहले नहीं बना, बस आज बनी, पहले कभी नहीं बनी, तेरे आज बना, तेरे नाच बनी, तेरे नाच बना, लगा नाच बना, लोग चांद पे आज गए, लोगों ने जलाल वाले बारिश को आज नापा। खुदा की कसम ये 50-50 मंजिला इमारतें पहले खड़ी नहीं होती थी। ये सारा का सारा साइंटिफिक जो विकास हुआ है, खुदा की कसम ये 1400 साल के अंदर अंदर हुआ है। इससे पहले विकास नहीं हुआ था दुनिया में। लोग थे मगर बिजली नहीं थी उनके पास, लोग थे ट्रैक्टर कार नहीं थी उनके पास, लोग थे उनके पास माइक मोबाइल नहीं था, लोग थे मगर उनके पास नासा शो नहीं था, लोग थे जलाने वाला उनके पास 50-50 मंजिला इमारतें नहीं थी, उनके पास खुदा की कसम कुछ भी नहीं था जीने के लिए। ये अल्लाह ने जो पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाया है मुस्तफा के आने के बाद, बेशक सुभान अल्लाह, हमारी समझ में आई नहीं है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब जो अल्लाह जिसके रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ताला का एक मोटो, बात मुसलमानों की नहीं करता, आप पूरा कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ताला मुसलमानों की बात नहीं करता जी। अल्लाह ताला कुरान में लिखा है फीहे शिफाउन लिन्नास, कुरान में लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह पीपल और पब्लिक की बात करता है। ऐसे ही हुदल लिन्नास, पीपल्स फॉर पीपल्स, हिदायत है फॉर पीपल्स, पब्लिक। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान के लिए फायदा है, अल्लाह ताला फरमाता मनाफिउल लिन्नास, लोगों के लिए, यानी सबका साथ सबका विकास। बेशक सुभान अल्लाह, बात मुसलमानों की नहीं है। जो अल्लाह मुसलमानों का अल्लाह वो पूरी दुनिया का अल्लाह है, सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, सारे जगत का अल्लाह है, सारे संसार का अल्लाह है। वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी नेशन और किसी भी जनाबे वाला जाति को बिलोंग करता हो, अल्लाह सबका अल्लाह है। ऐसे मेरा नबी सबका नबी है, तो रोज से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा सारी दुनिया का मुस्तफा है, सारी दुनिया का रसूल है। हजरात यही वजह है जिनके दिलों में नरमी है वो मुस्तफा से फायदे उठाते हैं, मुस्तफा की आल से फायदे उठाते हैं। गांधी जी है मुसलमान नहीं है, मगर उनका कलमा आप पढ़ के देख लीजिए गूगल पे, वो कहते हैं, खुद कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री बाय बीइंग ऑपरेस। पढ़े लिखे थे, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया है, हमारे देश के जनाबे वाला, आजादी के बहुत बड़ा संघर्ष में हिस्सा लेने वाले हजरत मोहतरम राष्ट्रपिता के नाम से पूरे भारत में लोग याद करते हैं। हजरत वो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, मगर उन्होंने जो सीख हासिल की है तो जनाब किसी मामूली आदमी से नहीं बल्कि इमाम हुसैन से सीख हासिल की। और वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री बाय बीइंग ऑपरेस। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। हुसैन मजलूम थे मगर करबला की लड़ाई यजीद नहीं जीत पाया, करबला की लड़ाई हुसैन ने जीती है। के बाद भी चारों तरफ हुसैन हुसैन होती है, गली गलियारे हुसैन हुसैन है, चारों तरफ हुसैन हुसैन है। यजीद का नाम है ना निशान है, किसी बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा जाता और हर घर के अंदर हुसैन है। हुसैन की जब मजलूम होकर भी लड़ाई मेरे हुसैन ने जीती। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? पढ़े लिखे उनसे सीख हासिल करते हैं और ये जाहिल उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्हें खाने पीने की तमीज नहीं है, जो खड़े खड़े खाते हो, जिन्हें सोने उठने बैठने के तौर तरीके याद न हो, जिन्हें मानवता और इंसानियत के बुनियादी उसूलों का पता न हो, वो मेरे हुजूर की बातें करते हैं। अरे हुजूर के गुणकारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, इसीलिए आपको चूंकि आप यहाँ पढ़े लिखे नगला साल आ रहे, तो मामूली गाँव नहीं है। यहाँ माशाअल्लाह बड़े चौड़े दिल के लोग रहते हैं, यहाँ फराख दिन है,
यहाँ कल्चर लोग हैं, इसलिए मैं बताऊं आपको, हिलाओ मत। मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंटर स्कूल, कोई इंटर कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, कोर्सेस, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इनकी बाकायदा तदवीन हुजूर से पहले नजर नहीं आती। ये एक कॉलेज हो तो बताओ, मैंने तो ये देखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुजूर के बाद बनी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुजूर के बाद बनी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुजूर के बाद बनी है। भारत की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब जनाब कोई 800 साल पुरानी है, कोई 700 साल पुरानी है, कोई 2000 साल पुरानी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया के पर्दे पर दिखाई नहीं देती। इसलिए यूनिवर्सिटियां नहीं थी क्योंकि नबी से पहले इल्म का उजाला आम ही नहीं किया गया था। इल्म का उजाला सिर्फ नबियों के पास था, ये अल्लाह के मखसूस बंदों के पास था, सबके पास नहीं था, कॉमन नहीं था। ये नबी पाक के आने की वजह से दिशाएं बदल गई जमाने की, जहालतों के घटकों बंद थे, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिए गए, इल्म की रोशनी फूट गई और चारों तरफ नॉलेज ही नॉलेज और ज्ञान ही ज्ञान बांट दिया गया। उसमें सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, इंसान की बात आई है। इसीलिए जेम्स वाट ने जनाब कोयला देख के रेल का इंजन बना दिया, मार्कोनी ने रेडियाई लहर को गिरफ्तार कर लिया। अरे तुम खुद देखो ना, अपनी आंखों से देख लो, कल वो 12-12 फीट के और 11-11 फीट के लोग थे, मगर जानते हो क्या कहते थे? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और एक तुम हो 5.5 फीट के हो, नबी के उम्मती हो, कमाल देखो तुम्हारा, तुमने हवाओं को पकड़ पकड़ के, हवाओं को पकड़ पकड़ के अपनी आंखों के सामने ही देख लो ना, इन हवाओं को पकड़ पकड़ के तुमने अपोलो और एमआरएफ के टायरों में भरना दिया, क्या तुमने ट्रकों को दौड़ाना दिया, क्या तुमने बसों को दौड़ाना दिया? इन हवाओं को भर भर के आपने टायरों के अंदर, ये बताओ ये टेक्निक कहाँ से आई? ये इल्म से आई। और इल्म कहाँ से आया? गारे हीरा से आया। और गारे हीरा कहाँ से आया? मेरे मुस्तफा से आया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुआ नबी के आने का बहुत बड़ा फायदा पूरी दुनिया को, बात तुम्हारी नहीं है जी। लोगों की समझेंगे या नहीं समझेंगे, वहां समझ जाएंगे। नबी और कारियों की बात तो हम बताऊं अपने नबी के बारे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से भेजा। ऐसे निराले अंदाज में पूरी दुनिया में कोई नहीं आया जिस निराले अंदाज में हमारे नबी आए हैं। सुभान अल्लाह। आए निराला अंदाज, सबसे पहले पैदा कर दिया, खरबों साल और खास में रखा, मशीयत ने कहा भेजूंगा तुझे, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले तेरी अजमत के परचम लहराऊंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अजमत के परचम लहराऊंगा, तेरे लिए जमीनें बनाऊंगा, तेरे लिए आसमान बनाऊंगा, बिछौना बिछाऊंगा, आसमान का शामियाना लगाऊंगा, गुलसितान बुस्तान तेरे लिए, हवाओं का बागपन तेरे लिए, बुस्तानों और चमनिस्तानों के चमन की खुशबू तेरे लिए, मैं पूरी दुनिया को सजाऊंगा तेरे लिए। और जब अल्लाह ने जमीन बना दी, आसमान बना दिया, जब अल्लाह ने पहाड़ बना दिए, उस पहाड़ों की गोदों से दरियाओं को जारी कर दिया, जब उन दरियाओं का एक महवर समंदरों की शक्ल में पैदा कर दिया, ये 7 समंदर, ये अरब महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये रेड सी, ये 7 समंदर अल्लाह ने उन नदियों के महवर के तौर पर बना दिए। जमीन बन गई, आसमान बन गया, सारी दुनिया सज गई, जमीन सजी, आसमान सजा। तो जनाबे वाला फिर भी मेरी मेहनत की मशीयत ने पुकारा, ये मैं महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी मैं तेरा प्रचार कराऊंगा। तो अल्लाह ने वो प्रचार करने के लिए सबसे पहले हजरत आदम को भेजा। हजरत आदम जन्नत में आए, हजरत आदम जब जन्नत में आए, बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, परेशान तो नहीं हो तुम लोग, अभी सुन पाओगे तुम हुजूर की बात आधा घंटा है, नहीं सुन पाओगे, मेरा मतलब क्या कह दो सुभान अल्लाह है कि टाइम ज्यादा हो गया है, कहीं शैतान तुम लोगों को बहका न रहा हो कि बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे। यही होता है लास्ट में, मगर जलसा कराने वाले पब्लिक को तो बेचारों को सब पता होता, मगर ये जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ये लोग जलसों को तहोवाला कर देते हैं। हजरत मोहतरम, अब ये टाइम कितना बेहतरीन टाइम था कि हम खड़े हो जाते
सलाम पढ़ते। मुझे बार बार ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि सुन रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए क्योंकि मैं इधर भी देख रहा हूँ, तुम्हारे शहरों को भी देख रहा हूँ, अब मैं नॉन स्टॉप सुनाऊं कहीं रुकूंगा नहीं, तो चल कराऊंगा तरफ प्रेशर अजब अंदाज में भेजा है, ऐसे अंदाज में अल्लाह ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े ताकत वाले, वाहद वाले, ताज वाले आए हैं धरती के पर्दे पर, मगर जिस शान से नबी आए शान से कोई नहीं आया धरती के पर्दे पर। शहंशाह नहीं आया, बादशाह नहीं आया, नामवर नहीं आया, खलावर नहीं आया, कोई हस्ती जन्नत वाला ऐसे नहीं आए जैसे मुस्तफा तशरीफ लाए। तेरा प्रचार कराऊंगा, पहले भेजना तुझे ही है, मगर प्रचार होगा। उस प्रचार के लिए अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को भेजा। हजरत आदम जन्नत में आए, अकेले थे तो अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से औरत को पैदा कर दिया। हजरत हव्वा तशरीफ लाई। हजरत हव्वा तुम्हारी और हमारी माँ, इंसानों की माँ, बड़ी खूबसूरत गजाल जबीन महजबीन चेहरा, जब सुभान अल्लाह, नूर नूर से मामूर चेहरा और माथा चौड़ा और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें। मुस्तफा जान हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा हुई। इतनी खूबसूरत थी वो हमारी माँ, इतनी खूबसूरत थी कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाजत ले लेकर हजरत हव्वा का चेहरा देखने के लिए आते थे। और जब देख लेते थे तो अल्लाह की तस्वीर बयान करते थे कि या अल्लाह तू पाक है, क्या खूबसूरत चीज तूने बनाई है। जब हजरत हव्वा पैदा हो गई बाईं पसली से तो अल्लाह हजरत आदम का हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ। अब मेरे नबी का प्रचार सुनो, कैसे प्रचार हुआ। अभी नबी आए नहीं थे मगर प्रचार और प्रसार शुरू हो गया है। हजरत आदम का जैसे ही हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ तो हजरत आदम से अल्लाह ने फरमाया, आदम इसका मेहर अदा करो, पहले इसका मेहर अदा करो। मेहर दे देना चाहिए, सबसे पहले मेहर ही देना चाहिए। 4 पतीले कम पकाओ, पहले मेहर दो। मेहर माफ नहीं कराना चाहिए, माफ कर रही है नहीं कर रही है नहीं कहना चाहिए। जनाजे वाला क्या मर्दानगी है, झूठी शान शौकत दिखाता है, शादी हालों में शादियां करता है, गरीबों का जीना हराम करता है, झूठी शान दिखाता है, और जनाजे वाला इतना जहेज करता है, मगर मेहर का जब टाइम आता है तो कहता माफ कर रही है नहीं कर रही है। मर्दानगी है ये 40वां हिस्सा मर्दानगी का बतौर खैरात ज़कात हो। मेहर माफ मत कराओ, 4 पतीले कम बताओ, झूठी शान कम दिखाओ। पहले जनाजे वाला मेहर का पैसा गंदा पेशानी से मुस्कुरा के अपनी बीवी को पहली मुलाकात में दो। ये तुम्हारा हक है, जैसे चाहो से यूज करना। हजरत मुहर्रम मेहर देना उसका कानूनी, शरीफ और अखलाकी हक है। अब पूरा दिन जनाब वाला पहलवान वाला घूमता है, शाम को उसके सामने जाकर सरेंडर हो जाता, माफ कर दो। क्यों कर दो माफ? अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। परेशानी तो नहीं हो रही? चलिए इस मौजू पे इंशाअल्लाह कुरान की आयत बाद में सुनाएंगे। आज हम ये बता दें, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम मेहर अदा करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके महल में। तो अल्लाह ताला फरमाया, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात। और मुस्तनद रिवायत है नगरा वालों, बहुत मुस्तनद रिवायत है। अल्लाह नसीब हुसैन करे। देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं, बहुत जोश है मेरे में। असगर भाई ने बताया था मुझे, घर के ही पहुंच गए थे बेचारे। कहाँ है असगर, नहीं है क्या? अच्छा तेरी कौन सी वाली? बोले कि बहुत दिन हो गए नगला में जैसे होते होते आप कभी नहीं आए। घर पे आ गए, मुझे भी थोड़ी हया आई, मैंने कहा जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई, खुशी हुई आपसे मिलके, मगर जी करता था 2 घंटे आपके लिए जाऊं, मगर क्योंकि वक्त इतना ज्यादा हुआ है कि अब कभी फिर के लिए उधार छोड़ेंगे। आज आपसे ही कर्म की बातें करके रुखसत होंगे। अल्लाह ताला हुजूर के सबके घरों में आपकी बरकतें अता फरमाए और खूब रहमतें नाजिल फरमाए आप पर। नबी आए नहीं थे धरती के पर्दे पर, सुनो हमारे नबी का चर्चा। प्रचार शुरू। अल्लाह ने फरमाया, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला फिर क्या दे दूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम हव्वा का मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। बेशक सुभान अल्लाह।
شک संसार की रचना करने वाला आदम से कह रहा है मेहर अदा करो फिर नबी का नाम लो। سبحان اللہ जब नबी का नाम आया तो हजरत हव्वा हजरत आदम के लिए हलाल हुई, निकाह तमाम हुआ। इसका मतलब नबी का नाम हमारे नेचर में डाल दिया गया। بے شک سبحان اللہ में तो आ गया जब मेहर ही वो है, नबी का नाम ही मेहर है। جی समझो है तो फिर तो वो हमारे खून में आ गया, नबी का प्यार हमारे खून में है, جی नबी का प्यार हमारे नेचर में है। नबी की अजमत से मोहब्बत करना ये हमारा फितरत का हिस्सा बना दिया हिस्सा है। इसीलिए अगर कोई आदमी नबी के खिलाफ बात करता है तो यूं समझो जैसे नेचर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है, नेचर के खिलाफ नेचर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। और मैं समझता हूँ ईमान हनफी है मेरा नाम, मेरा भी तजर्बा है, नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी, جی नेचर से बहुत दिनों तक یہ سکتا नहीं लड़ सकता। एक न एक दिन नेचर के सामने गिर जाता है आदमी, एक न एक दिन नेचर के सामने सरेंडर और सबलीगुल हो जाता है आदमी। बहुत दिनों तक नेचर से नहीं लड़ सकता, एक न एक दिन मानना पड़ता है, उसे सच्चाई को मानना पड़ता है। सच्चाई क्या है? जैसे मैंने कई चीजें बताई कि ये चीज नेचर से है, ये चीज नेचर से है, ये चीज नेचर से है, ये चीज नेचर से है। तो जनाब वाला आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं उस नेचर के खिलाफ चलते हैं, लेकिन एक दिन आता है, साल आ जाए या 2 साल आ जाए या 3 साल आ जाए, तो जनाब वाला वो उसी तरीके को अपनाते हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताया। سبحان اللہ खैर वो डिटेल में जाऊंगा, टाइम लगेगा, मगर एक बात बताता हूँ। जैसे देवबंदियों को देखो आप, देवबंदियों को देखो, जब हम 12 रबीउल अव्वल को नबी का जुलूस निकालते थे, हर जुलूस में देवबंद के मौलवी हमारे आड़े आते थे। हराम है, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, शिर्क है, व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ, सबूत दिखाओ, कहाँ लिखा जुलूस निकालना, कहाँ लिखा जुलूस निकालना, कहाँ लिखा जुलूस निकालना। ये हम ये अल्लाह मौलाना अशकार नहीं सारे के सारे इकट्ठे होकर हम लोगों को दिखाया करते थे। और मेरे ऊपर तो बहुत ही ज्यादा रहा करता था, कभी कुदरती से फोन आ रहा है, कभी बिहारी से फोन आ रहा है, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या जवाब है। सारी जिंदगी उससे रहे, जुलूस निकालते हो तो उसका सबूत दो, जुलूस का प्रूफ क्या है, हराम है, शिर्क है, हर 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में ऐसा करते थे देवबंदी। मगर अब क्या हुआ, क्या हुआ, 2024 का 12 रबीउल अव्वल जब आया, अभी अभी 1 महीना पहले 2024 का 12 रबीउल अव्वल मैंने आंखों से देखा, तुमने न देखा, तुम भी देख लेना, भारत के बड़े बड़े शहरों में देवबंदी मौलवी मेरे नबी का जुलूस निकालते नजर आए। بے شک سبحان اللہ मौलवी पीछे पीछे देवबंदी की जनता, मैं समझ गया वाकई नेचर से बहुत दिनों तक लड़ नहीं सकता आदमी, इसलिए देवबंदी नेचर के सामने झुक गए। بے شک سبحان اللہ जुलूस का फतवा देते थे और जुलूस का सबूत मांगते थे। आज खुद मेरे नबी की पैदाइश के दिन में जुलूस मोहम्मद سبحان اللہ سبحان اللہ सुभान अल्लाह سبحان اللہ बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकते। सैयदना आदम वाला नबीना अलैहि सलाम, नबी का नाम लेके प्रचार शुरू। अब मैं तुम्हें कितनी तफसील में जाऊं, थोड़ा सा और टाइम में। टाइम की हजरत आदम, टाइम है बहुत। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलाम जब जमीन पे आए, جی जमीन पे आए हुजूर, तो जमीन पे आते ही बहुत बड़ी बात है, सोचने और समझने की बात है। गंदम का दाना खा लिया था, गेहूं का दाना खा लिया, रब ने फरमाया अब ऐसा करो, जाओ जमीन के पर्दे पे जाओ। आ गए जमीन के पर्दे, रोते हुए आए, और ये कहते हुए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। कितने दिन रोए तुम्हें मालूम है? 100 साल, 100 साल में भी बात नहीं बनी, रोते रहे। फिर 200 साल,
कितने साल? बात नहीं बनी। 250 साल होता, 2 ही थे दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 ही थे बस, एक अब्बा एक अम्मा। हजरत अब्बा यहाँ थे भारत में, और हमारी अम्मा हजरत अब्बा वहाँ थी जद्दा में, अरब में, और अब्बा यहाँ, अकेले 2 ही थे बस। इधर ये तड़प रहे थे, उधर वो रो रही थी। यहाँ ये कहते थे अल्लाह मेरी खता इस्तेहादी को माफ कर दे, मौलाना गंदम का दाना खा लिया, मेरी खता इस्तेहादी हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं है। 250 साल नो रेस्पॉन्स, 350 साल पूरे 300 साल हो गए। 300 साल के बाद रोते हुए, कांपते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए हमारे अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने कुछ कलमे डाले कि ऐसे मत मांगो दुआ। प्रचार शुरू जो है ऐसा मत मांगो। कुरान शरीफ के पहले पारे में अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। तो फिर हजरत आदम के दिल में अल्लाह ने कुछ कलमे डाले कि ऐसे दुआ मत मांगो, ऐसे मांगो। कैसे, क्या 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 बात आई दिल में? ये बात आई दिल में सैयदना आदम के कि ऐसे दुआ मत मांगो, अल्लाह मेरी खता इस्तेहादी को माफ कर दो, ऐसे मांगो। तो जो आया था फिर उन्होंने उसी तरीके से हाथ उठाए, और हाथ उठा के वो जो आया था दिल में उसी तरीके से जनाब दुआ का रूप बदल दिया उन्होंने, और दुआ यूं मांगना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली खतीअती। मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इस्तेहादी को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। के बाद नगरा वालों जैसे इन सैयदना आदम के लबों पे पहली बार नामे मोहम्मद आया, पहली ही बार रहमते मौला से प्यारे मोहब्बत आया। सुभान अल्लाह। आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो हमने भेजा भी नहीं। आदम ने आज के पायों का देखा था, समझ लिया था बड़ी गुल्ली ज़ात है। अल्लाह ने फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, अगर ये न होते तो तुम भी न होते। और आदम आज तुमने अपने लिए मांगा है, अगर मेरे महबूब का नाम लेकर सारी औलादों के लिए मांग लेते तो मुझे अपने जलाल और जमाल की कसम, अपनी इज्जत की कसम, आदम आज मैं तुम्हारी सारी औलादों को माफ कर देता। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे अजीब तरीके से मुस्तफा आए हैं, अभी आए नहीं हैं, चर्चित है नहीं, चर्चा का विषय बने हुए चारों तरफ चर्चा। 1,24,000 नबियों से ऐलान कराया, खुद तो पढ़े सपने। 1,24,000 नबियों ने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा, उनकी जनता ने कहा है जो कलमा पढ़ा, मगर उन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा हमारा कोई हर नबी का है। सुभान अल्लाह। वोट नबी को, सपोर्ट नबी को, कान में भी नबी, मैदान में भी नबी। आखिर में हजरत ईसा तशरीफ लाए, ये आ रहे जा रहे। देखो हाँ माशाल्लाह, खुशी की बात है। ये बड़ी अच्छी बात देखी मैंने कि इतना समय गुजरने के बाद भी आप हजरात के अंदर जाने की ललक नहीं है, बल्कि अभी बैठे हुए आप बात सुन रहे हैं। इसका मतलब आप नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं, और आप जानते हैं कि मुस्तफा की बातों को छोड़ के जाया नहीं जा सकता। जान है वो हमारी, शान है वो हमारी, खुदा की कसम सब कुछ हमारा उन्हीं के लिए, जीना उनके लिए, मरना उनके लिए, और सारी कायनात, सारे संसार की पैदाइश मेरे मौला ने उनके लिए की है। अल्लाह हज़रत सरकार कहते हैं या रसूलुल्लाह, ज़मीन और नमक तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, दुनिया भर की हुकूमत तुम्हारे लिए, जोर से बोलो तुम्हारे लिए, अरे तो तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है ना तुम्हारे लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए, मेरे महबूब के लिए।
उस महबूब को छोड़ के कैसे मुस्तफा का आशिक जा सकते हैं? झूठ बोलते हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं। ये चलत फिरत करते रहते हैं और फिर कहते हैं हम जान दे देंगे। तुम जान क्या दे दोगे? 1 घंटा नहीं दे पाओगे, जान क्या दे दोगे? हैं? अरे ओ मुस्तफा के प्यारे गुलाम, शान देखी तुमने? किस शान से तशरीफ लाए? 1,24,000 नबियों से ऐलान कराया। आखिर में हजरत ईसा ने घोषणा की। आखिर में हजरत ईसा आए, घोषणा की। क्या घोषणा? मेरी माँ बहन तुम भी सुनती हो, हालांकि तुम किसी की सुनती नहीं हो, मगर यहाँ सुन रही हो, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ कोई आवाज औरतों की तरफ से भी नहीं आ रही है, वरना जलसों में औरतों को देखो तुम ऐसे जब काजल मूलियाँ बिक, मगर यहाँ बिल्कुल सन्नाटा। लोगों में कोई आवाज भी नहीं आती। सुभान अल्लाह, ये सुनने का तुम्हारे पास शौक है। आखिर में हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम को सीख जाए। आगे बढ़ता हूँ, समझो क्या बोलते हैं आखिर में आके हजरत ईसा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, आखिरी जलील क़द्र पैगंबर, मेरे नबी से पहले के आखिरी नबी। आगे बोले, अरे ओ लोगों, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा, बस सिलसिला एंड हुआ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। अब बस मेरे बाद कोई आ रहा है, तो वही आ रहा है जिसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। इंसानी को निजात देने वाला वो पैगंबर आ रहा है, रसूल इनकलाब आ रहा है, जिसकी बशारत दी गई वो आ रहा है, जिसकी खबर सुनाई गई वो आ रहा है, जिसका कलमा पढ़ा गया वो मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। 20 साल 500 साल के बाद पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुबह में, जब सब कुछ नबी के लिए बन गया और जब सज गया, जब घोषणा हो गई, तो फिर मेरे रब ने 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुनी, अजब स्टाइल के साथ, अजब अंदाज के साथ। क्या कहते हुए आज ऐसा फरमाया मेरे खुदा ने, जिब्राइल समझो है जी, जिब्राइल मेरा पैगंबर आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है धरती के पर्दे पर। क्या मुबारक औरत थी वो। इन औरतों की दुनिया में उस प्यारी खातून का नाम लो, अल्लाह उनके सत्ते में हम सबके बिगड़े काम बना दे। क्या प्यारी औरत, अल्लाह ने चुना था उन्हें नबी की माँ होने के लिए। खुदा की कसम, नबी की माँ बनने का शरफ हासिल हुआ हज़रत आमिना को। सुभान अल्लाह, क्या मुक़द्दस औरत है, क्या जनाब वाली औरतों की दुनिया में क्या तक़द्दुस महाब औरत खातून है। हज़रत आमिना के नसीब को सलाम, उनके मुक़द्दर को सलाम कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा की माँ बनने के लिए इस औरत को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके शिकवे नाज़ से 12 रबीउल अव्वल को मेरा मुस्तफा नूर की दुनिया से बशर की दुनिया में आता है। अल्लाह की दया है। जब आने लगे सरकार, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल झंडे ले जा। आज तक किसी की पैदाइश पे ऐसे नहीं, आज तक संसार का नक्षत्र कैसा झंडे लेगा। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा। बेशक 3 झंडे, इधर एंड पे, इधर एंड पे 0 पॉइंट पे, इधर सेंटर पॉइंट पे। क्यों? ताकि हमारे घर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत अब सुल्तान आ रहा है, जिसका राज जल्दी 150 साल नहीं चलेगा ना। सिर्फ मक्का मदीना या सिर्फ ताइफ में नहीं चलेगा, बल्कि जिब्रील अरब से लेके आजम तक कयामत तक 10-20-150 साल नहीं, कयामत तक जब तक चांद सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंडा बजेगा तो मेरे महबूब का डंडा बजेगा। खुदा की कसम, मेरे बरेली वाले बोले हरनो बदली रसूलों की होती रही, हरनो यानी सदियों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला।
हमारा अब नबी संसार आ रहा है, यही जा रहा है जमीन के इस कोने से लेके जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक राज अगर किसी का होगा तो महबूब का राज होगा। सुभान अल्लाह। अब आए मुस्तफा, ऐसा भी मिसाल तरीके से कोई आया कोई नहीं। अरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले जाहिलों से कहना चाहता हूँ, एक आदमी आके दिखाओ ऐसा आदमियों की दुनिया से, जी एक नबी आके दिखाओ। अब सुनो मजे की बात, पैदा हो गए मुस्तफा, दुनिया में बहुत महापुरुष हैं, बहुत महापुरुष हैं, स्टैचू लगे पड़े हैं उनके चौराहों पर, जी बहुत महापुरुष हैं, मगर इन महापुरुषों में से एक महापुरुष को उठा के लाओ जिसकी उम्र हुई हो 80 साल, 70 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, और उसके 40-50 साल जितनी भी उसकी उम्र है, उस उम्र का हर पल, उस उम्र का हर पल, हर सेकंड, हर मिनट हिस्ट्री में मौजूद हो। है कोई ऐसा? जी अरे वो सो गया तो हिस्ट्री भी सो गई, वो सो गया तो हिस्ट्री भी सो गई, वो किसी सफर में चला गया तो हिस्ट्री भी सफर में, बाहर आ गया, कोई घटना घट गई, कोई बड़ी घटना घट गई तो हिस्ट्री जाग गई। तो हिस्ट्री में उसकी जिंदगी के 10 वाकयात हैं। कितने? ये महापुरुष हैं। 5 फरवरी को ये घटना इनके साथ हुई, 8 अप्रैल को ये हुई, 20 अप्रैल को ये हुई, 5 अगस्त को ये हुई, 15 अक्टूबर को ये हुई, और ये जब जा रहे थे एक सफर में 15 जनवरी को इनके साथ ऐसा हो गया। बस इतना मिलता है सबके साथ, 5 घटना 10 घटना, किसी की पूरी जिंदगी मिलती है? हमने तो नहीं पढ़ी, तुम बताओ। लेकिन पूरी दुनिया के पर्दे पर मिलते मिसाल तरीके से जीना इसे कहते हैं कि एक अकेली हस्ती है महापुरुषों की दुनिया में मेरे मुस्तफा की। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। न वीडियो न कैमरा न कैमरा, मगर मुस्तफा की 63 साल की जाहिरी उम्र, कितने साल की? 63 साल। और 63 साल की जाहिरी उम्र का हर पल, हर मिनट, हर सेकंड इतिहास के कैमरे में मौजूद है। वो हुजरे आयशा में है तो हिस्ट्री देख रही है, वो जंगल में है तो हिस्ट्री देख रही है, वो मंगल में है तो हिस्ट्री देख रही है, वो नमाज पढ़ा रहे तो हिस्ट्री देख रही है, वो मस्जिद में आए तो फजर में आए तो हिस्ट्री देख रही है, दोहर में आए तो देख रही है, असर में आए तो कैसे आए ये देख रही है, मगरिब में आए तो कैसे आए ये देख रही है, जब वो बात कर रहे हैं तो कैसे फूल ढल रहे हैं ये देख रही है। और जनाब वाला हालत ये है कि अगर एक दिन में मेरे नबी 9 बार मुस्कुराए हैं, एक दिन में मेरा नबी अगर 9 बार मुस्कुराया है तो हिस्ट्री को ये भी पता है कि 8वीं बार जब मुस्कुराए थे तो कितने दांत खुले हुए थे। बेशक सुभान अल्लाह। है कोई तारीख साथ कोई आदमी ऐसा जो है? जी भाई बुखारी शरीफ का जो नाम पढ़ते हो आप, ये क्या है? ये मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, ये जो हदीसों की 6 किताबें हैं बड़ी बड़ी मशहूर, तो कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब है वो बुखारी है। ये क्या है? ये वही इतिहास है कि नबी आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, पालती मार के तो नहीं बैठे हैं, 2 दानू बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, नबी लेटे हैं तो कौन सी करवट पर लेटे हैं, 8 की करवट पर लेटे थे, और फिर लेट के जब मुस्तफा जान रहमत उठ रहे थे तो कितनी देर आप ऐसे ही बिस्तर पे मुस्तफा जान ऐसे ही लेटे रहे। वो सोते थे तो क्या फौरन उठ जाते थे और ऐसे ही खड़े हो जाते थे? बल्कि हिस्ट्री बताती है कि जब भी सो के उठते थे तो थोड़ी देर बिस्तर पे आंखें मसलते थे मुस्तफा जान रहमत। हालांकि आज समझ में आया कि थोड़ी देर लेटे रहने का क्या फायदा होता, ताकि ब्लड सर्कुलेशन डॉक्टरों से पूछ के देखो, डॉक्टरों ने तो सब कुछ सीखा ही मुस्तफा से। बेशक सुभान अल्लाह। मेडिकल के लिए देखो एक एक कदम मुस्तफा जान रहमत की नस्ल राह है जमाने के लिए। खुदा की कसम, मेरा मुस्तफा दुनिया का पहला अजीम शान हीरो, मुस्तफा ऐसा मसलेगा, ऐसा आइडियल, मेरा मुस्तफा इंसानी तारीख में वो बदले जलील है और महापुरुषों की दुनिया में वो महापुरुष है जिसकी 63 साल की जाहिरी पूरी की पूरी उम्र इतिहास के कैमरे में मौजूद है, और जिसे
जनाबे वाला मामूली लोगों ने कलमबंद नहीं किया, बल्कि अजीब तरीका है। नबी बात कर रहे हैं, नबी बात कर नबी बात तो इन्होंने सुना, इन्होंने इनसे बयान किया कि नबी ऐसे ऐसे कह रहे थे, नबी ऐसे 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 कह रहे फरमा रहे थे। इन्होंने इनसे कहा कि मुझे इन्होंने बताया कि नबी ऐसे ऐसे कह रहे थे। इन्होंने मुझसे कहा, ये क्या कहते हैं, मुझे इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने नबी से सुना, फिर मैंने इन्हें बताया, तो फिर मैंने कैसे बताया, मुझे इन्होंने बताया, इन्होंने इन्हें बताया, और इन्होंने इनसे पूछा, और इन्होंने नबी को देखा और नबी पाक से बात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे कहो सुभान अल्लाह। ये चैन, ये पूरी की पूरी रिवायत का सिलसिला। परेशानी हो रही है? नहीं बस 5 मिनट और अभी अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर करे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, और हर किस्म की आफत से मेरा अल्लाह तुम्हें बचाए। ये 5-6 लोग, ये जो नैरेटर्स का एक चैन है, एक सिलसिला है, इनके बारे में बाद में बड़े बड़े जबरदस्त मुहद्दिसीन ने इनकी कुंडली खंगाली सबकी। ये जिन्होंने सुना था, कभी झूठ तो नहीं बोलते थे कि नहीं बोलते, नमाज पढ़ते थे कि हाँ पढ़ते थे, किसी का दिल तो नहीं दुखाया था कि नहीं दुखाया था, किसी का हक तो नहीं मारा था कि नहीं मारा था। अब इनकी सुनो, इन्होंने हक तो नहीं मारा था, बोले नहीं मारा था। नमाज़ें पढ़ते थे कि हाँ पढ़ते थे। रसूल पाक के सच्चे गुलाम थे कि सच्चे गुलाम थे। जब मोहर लगी तो इनके बारे में कि ये ठीक थे कि हाँ ये ठीक थे, कि ये ठीक। तो जितने भी रिवायत कर रहे हैं सब उनकी सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे क्या रिकॉर्ड है, जितना रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड मेरा महबूब है धरती के पन्ने पर, और रिकॉर्ड हिस्ट्री के कैमरे की नजर में जितना मेरा महबूब है कायनात में कोई पुरुष, कोई महापुरुष इतना मुस्तफा जाने रहमत की तरह पूरी दुनिया में बेशक सुभान अल्लाह, सुभान आया है बेमिसाल तरीके से, रहा है बेमिसाल तरीके से, बेशक सुभान अल्लाह। कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर भी चाहे मुस्तफा की शान में मुसाफिर तुझे होती तो क्या चवास क्या है, तू मुस्तफा की शान में तू कैसे मुसाफिर, तुझे काफा याद नहीं है, ABCD याद नहीं है, तू कैसे नबी की शान में मुसाफिर कर सकता है। शान देख मुस्तफा की और सुन। आए जब अंदाज में, जी बेशक रहे जब अंदाज में, आए है क्या बताऊं, मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं बता पाया। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि क्या शान है। देखो एक यहूदी आता है, यहूदी था नहीं था, एक यहूदी आता है, एक एराबी था, आके मेरे नबी से कहता है, मोहम्मद तुम नबी हो? कहते हैं मुस्तफा फरमाते हैं, नबियों का इमाम हूँ मैं, बेशक रसूलों का सरदार हूँ मैं। सुभान अल्लाह। कहा सच्चे नबी हो, मेरी तरफ देखो, सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दे। पेड़ को गए तुम हो ना, पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। वो कहता है अगर सच्चे नबी हो तो बुलाओ ना। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जाके बोल महबूब ने बुलाया है। वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर, आ जाओ आ जाओ, तैयार है, ले अभी सिलसिला है आने का। अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़, उसने जाके कहा ओ पेड़, तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। बस इतना कहना था। अब पेड़ की बुलाने देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले
महबूब की जबान कैसी बेशक शायद सुभान एक अल्लाह कहा थे वो बुला रहे जाने जाने बुला रहे बहारे बहार बुला रहे हदीस में आता फक्त यमीन व शिमाला पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसे चला मुकब्बतन दूरहा नीचों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर वो पेड़ के पास सुननी है उधर वो आदमी नबी के कदमों पर गिर के कहता है जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो तुझे भेजने वाले रब्बे मेरे लाल की शान कैसी होगी। बेशक सुभान अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी तो मैंने तुमको कुछ बताया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह भाई देखो धरती पे चांद पे समा आसमान पे हैं जिधर देखो मेरे बरेली वाले ताज शरीयत कहते हैं ताज शरीयत जो अभी हम मौलाना साहब कितना अच्छा बयान कर रहे थे जनाजे का कर रहे थे कहाँ गए मौलाना साहब जनाजे का बयान कर रहे थे सीधे इमाम अहमद हम्बल का। यहाँ भारत में अभी कुछ दिनों पहले बरेली में आला हज़रत के पोते अजहरी मियां का इंतकाल हो गया था तो इतना जन सैलाब इतने लोग पूरी बरेली लोगों से पटे जी बेशक हर गली गलियारे में आदमी इतने जनाजे में हुजूम ताज शरीयत अभी कुछ दिनों की बात बाद में मिली तो कहते हैं वो ताज शरीयत बरेली वाले सरकार को बोलते हैं आला हज़रत के पोते कहते हैं आला हज़रत के नवाज कहते हैं क्या जहां में उनकी चलती है बेशक सुभान जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं जमीन को आसमां कर रहे हैं सुरैया को सारा कर रहे हैं। ये तो एक धरती की मिसाल दी मैंने आपको आसमान की एक हल्की सी मिसाल आसमान की भी दे दूं जी बेशक बस और 10 मिनट नहीं लगेंगे 2 मिनट। बहुत बड़ा सूरमा था रास्ता तो बहुत रोका ना अबू जहल ने हमारे लिए पीछा बहुत रास्ता रोका था रास्ते में कांटे बिछा देते थे मुस्तफा कांटे पे चलते थे दीन फैला देते थे। ये लोग मक्के में आने वालों के कानों में रूम में फूंक देते कि कहीं उनकी आवाज उनके कान में ना आ जाए मगर रूमियों की सरहदों सीमा को फाड़ फाड़ के मेरे महबूब की आवाज उनके दिलों में उतरती चली गई। मुस्तफा का कलमा रुका नहीं थमा नहीं तो फिर इन्होंने हथकंडा और अपनाया। फतेहपुर से लोगों को बुलाओ मलकपुर फतेहपुर से बुलाओ डींगरपुर से बुलाओ हरियाणा से बुलाओ इमरतपुर से बुलाओ बसेरा से बुलाओ। वो जो कुंदरकी के वो साहब हैं उनकी बहुत चलती है यहाँ नगला में उन्हें बुलाओ जिसकी चले उसे बुलाओ सबको रोको कोई जाए ना दिल्ली के बेटे के पास। तो अब ऐसे बुलाने लगे चौधरियों को सूरमाओं को इलाके के नवाबों को तो उन्हीं चौधरियों में एक चौधरी का नाम आता हबीब ये यमन का था बड़ा चौधरी इसकी बहुत चलती थी मक्के में। बुलाया आ गया तुम समझ गए ना बैकग्राउंड पूरा। अब 2 मिनट लगेंगे मुझे बात बता देना। बुला लिया आ गया आने के बाद हाँ बताओ साहब क्यों बुलाया तो अबू जहल बोला बताना कुछ नहीं है तुमने नाम तो सुनी लिया होगा अब्दुल्ला के बेटे का। हाँ हाँ नाम सुना है अब्दुल मुत्तलिब के पोते का अबू तालिब का भतीजा है ना वो ही ना कहाँ वही बहुत रास्ते रोके हमने हबीब बहुत रास्ते मगर कोई सिर्फ कामयाब नहीं होता। एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता समझ में नहीं आता हमारे रोज पर रोज उसका चराग जलते चला जा रहा है और उसका सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा है। रोक दो अपने लोगों को हमने फर्क बुला के फर्क अब तुम अपने लोगों से कह दो कि कोई इसके पास न जाए बस ये आखिरी रास्ता है। अभी बोला बात तुम्हारी सही है रोक दूंगा मना कर दूंगा सबसे कोई न जाएगा उसके पास मगर एक बार ना मेरी बात कर रहा हूँ बेशक सुभान अल्लाह एक बार मैं भी तो सुनूं क्या कह रहा है ये इसकी धमक यमन तक है यमन के थे ना कि इसकी धमक यमन तक है। एक बार मैं भी सुनना चाहता हूँ कहता क्या है ये एक बार मेरे सामने बुलाओ। तो अबू जहल बोला एक बार की तो बात है अरे एक बार की तो बात है जो एक बार उससे बात कर लेता वो बच के नहीं जाता। कहा तुम बात नहीं कराओगे तो सुन लो मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हूँ
दो तरफा बात सुनूंगा, तुम्हारी सुन ली उसकी भी सुनूंगा, वरना तुम अपने घर जा रहे हो, ये मन को चल पड़ा है अभी, कंधे पकड़ लिए उस पर शहबाज है, अब मुझे है कंपनी के गुंडों ने कंधे पकड़ लिए ना, जाने नहीं देंगे, कहा जाने देंगे बुलाओ, तो अबू जहल बोला चलो कोई बात नहीं, चलो हम बुलाते, क्या फर्क पड़ता है, बुलाते, क्या हो गया, बैठो तो, हाँ ठीक है, बोला फरमान लिखा है, आ जाओ। मेरे नबी ने पढ़ा, अब मेरे नबी किसी से डरते नहीं थे, न कभी झिझके न कभी बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी, बहादुर के बहादुर और सूरमाओं के पहलवानों के पहलवान मुस्तफा, बेशक सुभान अल्लाह, कभी नहीं डरे, फौरन खड़े हुए आने लगे, बहुत बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे, वो कर देंगे, जैसे नबी का चेहरा देखिए सन्नाटा छा गया पूरी मजलिस में, ऐसा सन्नाटा के अगर तुम देख लेते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे खड़े, और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता है जैसे लाशें खड़ी हैं, बरेली वाले आला हजरत सरकार कहते हैं या रसूलुल्लाह क्या शान है तुम्हारी, तेरे आगे यूं है दवे लच्छे कुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यूं है दवे लच्छे कुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जान नहीं है, आ रहे हो जा रहे हो, बैठ जा, माशाअल्लाह। अब वो मुस्तफा आ गए, आने के बाद आपने फरमाया सन्नाटे की इस नबी इस चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया हमें, तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, अभी बाहर को निकल के आया झुंड में से, बोले हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, तहजीब से बात करना हमसे, नबी ने फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में अब्दुल्ला के शहजादे, मगर आज दूध का दूध पानी का पानी कर देते, कहा क्या सुना है, कहा ये सुना है कि तुम नबूवत का दावा करते हो, इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, जी बेशक, रसूलों के सरदार हैं हम, बेशक सुभान, कहने लगा अगर सच्चे हो अब्दुल्ला के बेटे, और कहीं कोई झूठ नहीं है, तो एक चेकिंग, एक चेकअप, एक एग्जाम, वो देखो चांद चमक रहा है 14 का, 14 ज़िलहिज्जा की बात की, चांद चमक रहा है 14 का, अगर सच्चे नबी हो 2 टुकड़ा करके दिखा दो, उसे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, और फिर वो जादू समझता था, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं, कहता है अगर सच्चे नबी हो गए तो कर दोगे, वरना झांसा खत्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कर दो 2 टुकड़े, मेरे नबी इसकी बात सुन के मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, और इसलिए मुस्कुराए होंगे मेरे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू नबी, बहुत छोटी सी बात कर गया रे, बहुत छोटी, अरे बहुत छोटी सी बात है, इस चांद के 2 टुकड़े करने को कहता है, ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, बेशक सुभान अल्लाह, में लेटे थे, हमसे वादा कर चुका है, क्या सोच रहे हैं अब्दुल्ला के बेटे, कर दो 2 टुकड़े, मुस्कुराए, मुस्तफा उठाई शहादत की उंगली, इसलिए गवाह है जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है, लेने वालों सुन्नियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही मुस्तफा जान रहमत की उंगली का इशारा हुआ है, चांद का सीना ऐसा फटा और खुदा की कसम चांद ऐसा फटा, 2 हिस्सों में आदम फाना में, एक हिस्सा पूरब में फौरन जुदा हो गया, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में, अबू जहल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और इस पर पसीना आ गया हबीब को, पसीने में शराब, अब सोचने में मजबूर हुआ अगर ऐसा ही रह गया तो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा, तू हबीब तेरी वजह से चांद और पूरी दुनिया में तेरी चांद हो जाएगी हबीब, तेरी वजह से ऐसा हो गया, बहुत परेशान, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे गजब हो गया, दोनों को एक कर दो, वो जानता था जो फाड़ सकता है वो
जी एक कर सकता है? मुस्तफा जान रहमत फिर मुस्कुराए और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। बेशक उम्मत को शायद हुए थे मुझे बेशक सुभान हबीब ऐसे ही रहने देना। हबीब ने कहा मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, ना कर जाएगी, पूरी दुनिया मुझे गालियां दिया करेगी। एक कर दो। मुस्तफा की उंगली उठी, महबूब की जाने जाना की उंगली उठी है। कमाल हो गया मुसलमानों, कमाल हो गया। गूगल पे भी देख लेना तुम सर्च करके, कुल खबर का मौजूदा तक देखोगे तुम्हें जनाब वाला एहसास हो जाएगा। सब रिसर्च मौजूद है। खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही मुस्तफा ने दोबारा इज्जत वाले पैगंबर ने जैसे ही दोबारा उंगली का इशारा किया, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों एक दूसरे से जुड़ तो गए, गले तो मिल लिए, मगर नगला वालों अजब बात है, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ों बीच में दरार रह ही जाती है। यही वजह है कि ये अभी साइंस वाले लोग चांद पे गए थे तो इन्होंने खुद लिखा कि बीच में फटन है, जी बेशक बीच में एक दरार है। भाई का क्या नाम है आपका? नूरे आलम। आपका? गफ्फार हसन। सब लोग नगला के हैं ना? ये आसपास के भी कुछ आ गए हैं। कुछ रहा यार, बड़ा अच्छा सुनते हो यार तुम लोग, तो हैरान कर देने वाली तुम्हारी समाज है। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, जब भी जलसा कराओ तकरीरें पहले कराओ। माहौल जैसा चल रहा है तुम जान रहे हो, तकरीरें पहले कराना और उसके बाद शेर शायरी कराना, और फिर जितना मर्जी करे उतना सुनते रहो, तो बाउंड्री पार हो जाएगी। और एक बात नोट कर लो, मैं इमरान हनफी था, वरना 12 बजे के बाद अगर किसी ने ऐसी तकरीर कर दी जो तुम्हारी समझ में नहीं आई तो फिर तुम मेरे आगे चले गए, तो मुझे समझ में नहीं आ रही। इसलिए टाइम इतना रहे तकरीर के लिए कि समझ में ना भी आए तो भी बैठे रहे। तुम्हें अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा सुनते हो तुम। आखिरी बात, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। मानना ना मानना का अल्लाह की तरफ से जैसा होता है वो होता है जी। अब आप इस बात को जाने दीजिए। अब तो मैं आइंदा की बात बता रहा हूँ, अब इसको पीछे की बात तो इसको खत्म कर दीजिए। अब तो आपका जलसा अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह बहुत कामयाब जलसा है। अल्लाह तुम्हारे घरों में, कारोबारों में, घर वारों में बरकतें अता फरमाए। आखिरी बात इस तकरीर की, ताकि ये भाई भी पढ़ लें, है नहीं, बड़ी स्ट्रीट से आने, दूर से आने नहीं, आप नाट पढ़ लें, है आप इतनी दूर से। इससे जो आपने पढ़ा है मुझसे पहले, उससे पहले भी पढ़ा था क्या आपने? नहीं पढ़ा ना, और पढ़ लें। तो जनाब वाले ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों कि ये मुस्तफा है, जैसे ही चांद के टुकड़े यानी धरती पर मुस्तफा है का एजाज और आसमान पर मुस्तफा का मौजूदा अजब शान से रहते हैं, अजब शान से आते हैं, और कभी फिर बताएंगे इसके बाद की बात। बस इतना करो, हम बड़े पीर साहब के नाम से जलसा कर रहे हैं जी। ये बड़े पीर कौन है ये तुम बता दिए तकरीर में। मुझे यही बताना जरूरी था क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है कि तुम नबी की बातें करो, बेशक सुभान अल्लाह। हम बताएं कि हुजूर क्या है। जी बात समझ रहे? रही बड़े पीर साहब की बात, तो बड़े पीर साहब मेरे नबी की औलादों में से एक जी। अजीम शान शहजादे हैं हुजूर के, बेशक। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के तकरीबन 500 साल के बाद दुनिया में आए। 500 साल के बाद दुनिया में आए और अल्लाह ने उन्हें ये रुतबा दिया बगदाद वालों को कि अल्लाह ने उन्हें वलियों का इमाम बना दिया। बेशक वो सुभान वलियों के लीडर है, वलियों के इमाम है। 11वीं शरीफ उनसे मंसूब है। गौसे आजम के नाम की 11वीं करते रहो, मुस्तफा के नाम की 12वीं करते रहो, सुन्नियत पर कायम रहो, जितनों की घड़ी है बरेली वाले आला हजरत से जुड़े रहो। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? बरेली के आला हजरत से जुड़े रहो। बस तुम्हारे ईमान की हिफाजत अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत करे, और जियो जब तक नमाज 5 टाइम की पढ़ते रहो, अल्लाह को राजी करते रहो। दुनिया में कुछ नहीं रखा, चंद दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी। 4 दिन की चांदनी है और फिर खत्म हो जाएगी। कब्रिस्तानों में जाकर देख लो, बड़े बड़े चलेगा, कोई बच्चा नहीं, ना कब्रों के निशान बचे। इसीलिए जवानी चंद दिन की, दौलत चंद दिन की,
दिमाग चंद दिन का, दिल चंद दिन का, इसको अल्लाह और रसूल की रजा के लिए कुर्बान करो। अपने दिल को अल्लाह के लिए, मुस्तफ़ा के लिए, और अपने सर को अल्लाह के लिए, और दिमाग को रसूलुल्लाह के लिए, और अपने जिस्म के हर हिस्से को अल्लाह को राज़ी करने और मदीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी करने के लिए वक्त कर दो। चंद दिन की जिंदगी है, उसी हिसाब से गुजारो जो हिसाब मुस्तफ़ा ने तुम्हें दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वफा, तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कुछ सब निशानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।